नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, खासतौर पर बिम्स्टेक की। बिम्स्टेक देशों में भारत अग्रणी भूमिका निभाता है। थाईलैंड में हो रहे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने यूपीआई को जोड़ने, बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना करने और व्यापार बढ़ाने समेत कई प्रस्ताव रखे हैं। बताएंगे आपको प्रधानमंत्री ने बिम्स्टेक में मंच पर भारत की ओर से किन बातों को रखा। साथ ही होंगी देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरें भी, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। थाईलैंड में आयोजित छठे बिम्स्टेक समिट में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के कारण हुई जानमाल की हानि पर जताई संवेदना। बिम्स्टेक से इतर थाईलैंड में प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की मुलाकात। तख्तापलट के बाद पहली बार हुई पीएम मोदी से मुलाकात। वक्फ संशोधन बिल संसद से मंजूर होने पर पीएम ने जताई खुशी। कहा, आधुनिक और सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशील युग की होगी शुरुआत। पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की अवैध नियुक्ति को लेकर भाजपा का ममता सरकार पर हमला। मांगा इस्तीफा। कहा, घोटालों को दबाने के लिए शुरू कर देंगी दंगा फैलाना। और नहीं रहे सिने जगत के भारत कुमार। कल होगा मनोज कुमार का अंतिम संस्कार। शोक में डूबा बॉलीवुड। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत तमाम नेताओं ने जताया दुख। और मिड डे प्राइम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री के थाईलैंड दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड में आयोजित छठे बिम्स्टेक और प्रधानमंत्री के थाईलैंड दौरे से पहले आइए रुक करेंगे सीधे इस समय हम संसद भवन में राज्यसभा का। Party collaboration and legislative rigor. The House engaged in insightful debate on the motion of thanks to the President. The address rendered by her is spanning 3 days with active participation of 73 members. The deliberations on the Union Budget 2025-26 were equally incisive and comprehensive, lasting over 3 days and drawing the considered contribution of 89 members. Besides, the House held substantive discussion on the working of 4 key ministries of the government. On the Union Budget 2025-26, we had lively interaction between the Finance Minister and the former Finance Minister. That was absolutely soothing to us. As usual, they agreed to disagree. The introduction of as many as 49 private members' bills in this House needs a special mention. The concern of the members for private member bills is taken note of by me, and I will be in touch with leader of the House and leader of the opposition to see that we act more diligently in this direction. Overall, the House functioned for a total of 159 hours, including more than 4 hours after midnight. The productivity of this session stood at 119%. On April 3, 2025, the Rajya Sabha began proceedings and etched its name in the annals of legislative history with an unprecedented sitting from 11 a.m. on that day until 4:02 a.m. the following day. That is, this day, the longest in its history. This would send a very great message to the people at large and enhance belief in this great institution. During this marathon sitting, the House passed the transformative Waqf Amendment Bill 2025,
bringing transparency and accountability to work property management while modernizing legacy systems and upholding principles of equity and justice. I extend my sincere gratitude to the Honorable Deputy Chairman, Shri Harivansh Ji. His wise counsel has always been a great asset to me. I extend gratitude also to the Vice Chairpersons, House and Opposition leaders, the Minister of Parliamentary Affairs, party leaders, and all the honorable members for their invaluable assistance and cooperation in conducting these proceedings. I greatly recognize and acknowledge the diligent efforts of the Secretary General and the staff for having engaged in smooth functioning of the House, working long hours. Why should not Prime Minister come? There is no house that no important ministers. The House also had the occasion to see presence of the Honorable Prime Minister when in this House. When, sir? In this House. Only 15 minutes he attended this session. Sir, President. only what I say is going on record so that we don't have attraction otherwise. No, but I am telling. The session will be remembered This house, for its historic legislative accomplishments this house is also important. and spirit of unity that prevailed. He should reply. It stands as a defining moment in India's parliamentary journey, a powerful reminder of what can be achieved through dialogue, perseverance, and shared purpose. The Rajya Sabha has once again set the democratic standards worth emulation by others. Honorable members, our future sittings will see announcement of these democratic values getting blossomed. Jai Hind, now our national song. तो संसद में बजट सत्र का आज अंतिम दिन लोकसभा और राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई हैं। राज्यसभा के सभापति ने कहा कि सदन की पूरी कार्रवाई को इतिहास में याद रखा जाएगा, बेहतर काम के लिए याद किया जाएगा, देर रात तक चली कार्रवाई के लिए सदन को हमेशा याद रखा जाएगा। तो इन तमाम शब्दों के साथ अनिश्चितकाल के लिए राज्यसभा की कार्रवाई भी स्थगित की गई और इसी के साथ संसद का बजट सत्र का समापन हुआ आज। आइए एक बार फिर लौटते हैं प्रधानमंत्री की थाईलैंड यात्रा की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड में आयोजित छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। पीएम मोदी की भागीदारी से इस क्षेत्र में आपसी सहयोग को बल मिला है। पीएम मोदी का कार्यक्रम स्थल पर स्वागत किया गया। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का छठा शिखर सम्मेलन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित हुआ। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य साझा सुरक्षा और विकासात्मक चुनौतियों के लिए सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाना है। और आइए एक नजर डालते हैं बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी के संबोधन की कुछ मुख्य बातों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
थाईलैंड दौरे में बिम्स्टेक के शिखर सम्मेलन में कहा कि म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के कारण जानमाल की नुकसान पर संवेदना व्यक्त की। आपदा में घायल हुए लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की प्रधानमंत्री ने बिम्स्टेक के मंच पर। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिम्स्टेक दक्षिण एशिया और पूर्व एशिया को जोड़ने का सेतु है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, क्षेत्रीय संपर्क, सहयोग और समृद्धि की नई राहें खोलने के लिए एक प्रभावी मंच बताया बिम्स्टेक को। बैंकॉक विजन 2030 बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में समृद्धि, सुरक्षा और समावेशिता के संकल्प को साकार करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि होम मिनिस्टर्स मैकेनिज्म को संस्थागत रूप दिया जा रहा है। साइबर अपराध, सुरक्षा, आतंक के खिलाफ लड़ाई में फोरम की अहम भूमिका होगी। बिम्स्टेक को किस तरह से और सार्थक और मजबूत किया जाए, इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष भारत में इसकी पहली बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक ग्रिड इंटरकनेक्शन पर तेजी से काम करने का प्रस्ताव भी दिया। प्रधानमंत्री ने इस मंच पर कई प्रस्ताव भारत की तरफ से दिए। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत के अनुभवों पर पायलट स्टडी करने का भी प्रस्ताव प्रधानमंत्री ने दिया। यूपीआई और बिम्स्टेक क्षेत्र में पेमेंट सिस्टम के बीच कनेक्टिविटी का प्रस्ताव रखा प्रधानमंत्री ने। किस तरह से बिम्स्टेक देशों के बीच सामंजस्य समन्वय बढ़े, इसको लेकर प्रधानमंत्री ने जिन प्रस्तावों को रखा उसमें हर साल बिम्स्टेक बिजनेस समिट आयोजित करने का भी प्रस्ताव रखा। स्थानीय मुद्रा में व्यापार की संभावनाओं में फिजिबिलिटी स्टडी का प्रस्ताव रखा। तो कई ऐसे प्रस्ताव रखे जो आने वाले समय में भारत के साथ साथ बिम्स्टेक देशों के विकास में भी महत्वपूर्ण होंगे। भारत में सस्टेनेबल मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट सेंटर की स्थापना का प्रस्ताव रखा। भारत एक अग्रणी भूमिका निभाता है बिम्स्टेक में, एक तरह से उसी का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रधानमंत्री ने बिम्स्टेक के मंच पर बिम्स्टेक क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं के प्रति बेहद संवेदनशील होते हुए कहा कि भारत हमेशा अपने मित्र देशों के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह कार्य करता है और आगे भी करता रहेगा। आपदाओं को रोका नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिम्स्टेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री ने बिम्स्टेक देशों में कैंसर केयर में ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भारत आगे बढ़ेगा। ट्रेडिशनल मेडिसिन में रिसर्च और प्रसार के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों के नॉलेज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस के आदान प्रदान, अनुसंधान और क्षमता निर्माण के लिए भारत में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने का भी प्रस्ताव रखा। अंतरिक्ष के क्षेत्र में, स्पेस क्षेत्र में भारत की प्रगति को बिम्स्टेक देशों के साथ साझा करने को भारत तैयार है। बिम्स्टेक देशों के लिए मैन पावर ट्रेनिंग, नैनो सैटेलाइट्स के निर्माण और लॉन्च, रिमोट सेंसिंग डेटा के उपयोग के लिए ग्राउंड स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। युवाओं की स्किलिंग के लिए हम बोधी यानी बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव शुरू करेंगे। इसके अंतर्गत बिम्स्टेक देशों के 300 युवाओं को हर साल भारत में ट्रेनिंग दी जाएगी। तो बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि भारत के फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट में बिम्स्टेक छात्रों के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। नालंदा विश्वविद्यालय में भी स्कॉलरशिप स्कीम का विस्तार किया जाएगा। बिम्स्टेक के मंच पे प्रधानमंत्री ने भारत की ओर से बिम्स्टेक देशों के युवा डिप्लोमेट्स के लिए हर साल ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा, इसकी भी बात रखी, इसका प्रस्ताव रखा। हमारी साझा सांस्कृतिक विरासत हमारे संबंधों की मजबूत नींव है। प्रधानमंत्री ने इस मंच से यह आह्वान किया, कहा कि ओडिशा की बाली यात्रा बौद्ध और हिंदू परंपराओं के गहरे ऐतिहासिक संबंध, हमारी भाषाएं, ये हमारी संस्कृति का प्रतीक हैं। इन संपर्कों को उजागर करने के लिए इस वर्ष भारत में पहले बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। युवाओं के बीच आदान प्रदान बढ़ाने के लिए इस वर्ष बिम्स्टेक यंग लीडर्स समिट आयोजित की जाएगी। बिम्स्टेक हैकाथॉन और यंग प्रोफेशनल विजिटर्स प्रोग्राम की शुरुआत की जाएगी। तो अनेकों प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिम्स्टेक के मंच पर भारत की ओर से रखा। खेलों के क्षेत्र में भारत में इस वर्ष बिम्स्टेक एथलेटिक्स मीट आयोजित करने का भी प्रस्ताव रखा प्रधानमंत्री ने। बिम्स्टेक की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर हम पहले बिम्स्टेक गेम्स होस्ट करने की घोषणा करते हैं, प्रधानमंत्री ने कहा बिम्स्टेक के मंच पर। तो बिम्स्टेक सदस्य देशों के साथ किस तरह से सहयोग को
चौमुखी क्षेत्रों में बढ़ाया जाए, इसके कई प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिम्स्टेक के मंच पर रखा। हम जानते हैं कि बिम्स्टेक देशों में भारत अग्रणी स्थान रखता है और अपनी उसी भूमिका को निभाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम क्षेत्रों में कई ऐसे प्रस्ताव रखे जो बिम्स्टेक देशों में भी विकास की यात्रा को और मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड दौरे पर बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन से इतर बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की। गौरतलब है कि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है और दोनों के बीच आपसी सहयोग से जुड़ी विभिन्न परियोजनाएं जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के कार्यवाहक मुख्य सलाहकार अंतरिम सरकार के मोहम्मद यूनुस से मुलाकात बेहद अहम। इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग की जो तमाम योजनाएं जारी हैं उनको आगे भी जारी रखने पर बातचीत हुई। साथ ही साथ दोनों देशों के बीच के संबंधों को और मजबूत करने और बेहतर करने पर भी बातचीत हुई। हमारे साथ पूर्व वरिष्ठ राजनयिक प्रभुदयाल मौजूद हैं। प्रभुदयाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे हम चाहेंगे कि बिम्स्टेक पर जिस तरह से एक तरह से कई क्षेत्रों को, तमाम सेक्टर्स में बिम्स्टेक देशों के सहयोग को बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने कई प्रस्ताव रखे हैं। आप अगर बिम्स्टेक के मंच के टेकअवेज की हम बात करें तो आप किस तरह से देखते हैं? रितु जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में बुलाने के लिए। बिम्स्टेक जो है उसके सामने कई संकट हैं। एक तो जो म्यांमार में आंतरिक स्थिति है, जो वहां पर इंसर्जेंसी चल रही, इसके अलावा म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में जो रोहिंग्या को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसके अलावा जो बांग्लादेश में आज हालात हैं, जिस तरह से शेख हसीना के जाने के बाद वहां पर जो आंतरिक स्थिति खराब हुई है, वो एक चिंता का विषय है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि बिम्स्टेक जो है उसकी कार्यशैली अच्छी बनी रहे, उसमें एक्टिविटीज ठीक रहे और बिम्स्टेक की जो सदस्य कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के साथ ताउन के रिश्ते बनाएं। तो आपको याद होगा कि हालांकि बिम्स्टेक की स्थापना बहुत पहले हुई थी, 1997 में हुई थी, लेकिन इसकी जो गतियां हैं, उसकी जो एक्टिविटीज हैं, उसमें गति ज्यादा आई जब प्राइम मिनिस्टर ने लीडर्स की रिट्रीट एक ऑर्गेनाइज की थी गोवा में, और उन्होंने ये 2016 में किया था। तो उसके बाद से बिम्स्टेक में जो है उसकी कार्यशैली बदलने लगी और एक्टिविटीज बढ़ने लगी, और प्राइम मिनिस्टर ने फोकस किया कि वो डेवलपमेंट पे बहुत जोर देते हैं और बिम्स्टेक की कंट्रीज का किस तरह से डेवलपमेंट हो, इस पे उनकी बहुत तवज्जो रहेगी। देखिए, प्रधानमंत्री की 4 पॉलिसीज हैं जो बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड हैं और जो बिम्स्टेक के संदर्भ में बहुत महत्व रखती हैं। एक तो है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, दूसरी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, तीसरा महासागर विजन एंड चौथा विजन फॉर इंडो पैसिफिक। सो ये सब जो हैं ये बिम्स्टेक के क्षेत्र में, उसके संदर्भ में बहुत महत्व रखती हैं और प्रधानमंत्री मोदी कोशिश कर रहे हैं कि बिम्स्टेक के जो सदस्य हैं उनकी कैसे जो उनकी कार्यशैली एक दूसरे से मिले और उनकी प्रोग्रेस हो। तो उन्होंने जो ये थाईलैंड में जो समिट हुई है, इसमें जो उनका जो वक्तव्य रहा, उन्होंने जो स्पीच दी, उसमें इन सब चीजों पे आप देखिए जोर दिया गया है और सब देशों को किस तरह से आगे काम करना है और भारत इसके संदर्भ में क्या क्या करने को तैयार है, प्रधानमंत्री ने उसको बड़ा स्पष्ट तौर पे दूसरों को समझाया। जी, प्रभुदयाल जी, आपने कहा कि तमाम देश अपने आंतरिक संकटों से गुजर रहे हैं। ऐसे में बिम्स्टेक का 6ठा शिखर सम्मेलन बेहद अहम हो जाता है। क्या आपको लगता है कि आज जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कई बड़े प्रस्ताव बिम्स्टेक देशों के सामने रखे जो उनकी आंतरिक तरक्की
क्षेत्रीय विकास के लिए एक अहम हो सकते हैं, क्योंकि उसमें युवाओं के लिए है, खेल के क्षेत्र में है, साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में है, बिजनेस के क्षेत्र में है। तो जहां एक बड़ा बिजनेस समिट ऑर्गेनाइज करने की भी प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है, इसके साथ कई ऐसे बड़े प्रस्ताव रखे हैं। तो क्या आपको लगता है कि एक ऐसे संकट के समय भारत एक अग्रणी भूमिका निभाता हुआ एक दिशा देने की कोशिश कर रहा है पूरे बिम्स्टेक फोरम को? जी बिल्कुल, भारत हर तरह से कोशिश कर रहा है कि बिम्स्टेक देशों की सहायता कर सके और वो सही रास्ते पे चल सके। देखिए, अभी हाल में ही इतना बड़ा अर्थक्वेक आया म्यांमार में और थाईलैंड में, और भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर था इन सब देशों को, दोनों देशों को सहायता पहुंचाने में, और हर तरह से अभी भी कार्य कर रहा है कि वहाँ की स्थिति ठीक की जाए। तो जो बिम्स्टेक कंट्रीज में सिचुएशन है वो बहुत बिगड़ी हुई है, खास तौर पे म्यांमार और बांग्लादेश में। देखिए, म्यांमार में तो ये अर्थक्वेक भी आया, इसके अलावा इतने सालों से वहाँ इंसर्जेंसी चल रही है, बहुत डिस्टर्ब सिचुएशन है, और इसी वजह से वहाँ जो भी गवर्नमेंट है उसकी जो आसियान कंट्रीज नाराज है कि एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट वहाँ पर है और डेमोक्रेटिक सिस्टम को हटा दिया गया। तो आसियान के जो देश है वो म्यांमार के प्रति जरा सख्ती न अपना रहे हैं, उनको एक तरह से पर्सना नॉन ग्राटा समझते हैं। लेकिन हमारी समझ में म्यांमार के साथ अगर काम किया जाए तो म्यांमार शायद सही रास्ते पे आ सकता है, और इसी वजह से जो बिम्स्टेक का जो शिखर सम्मेलन रहा है इसमें म्यांमार की शिरकत रही है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर तरह से ये दिखाने की कोशिश की दूसरे देशों को कि वो भारत के साथ अगर काम करें तो उनका कितना फायदा हो सकता है। तो इसी तरह से जो आपने गिनाए थे स्टेप्स जो प्रधानमंत्री ने वहां पर कहे, ये सब दर्शाते हैं कि वो इन सब देशों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर बिम्स्टेक के संदर्भ में वो एक साथ मिलकर काम करें और बिम्स्टेक की जो एक्टिविटीज वो साथ मिलकर प्रमोट करें तो उसमें सबका हित है। और साथ साथ देखिए, प्रधानमंत्री तो हमेशा इस बात पे जोर देते आए कि उनका विश्वास है वसुदेव कुटुंबकम में, वर्ल्ड इज वन फैमिली। तो ये तो हमारे इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, बिल्कुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इनका डेवलपमेंट करना, इनकी सहायता करना तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। और यही बात बिम्स्टेक के ये जो समिट में प्रधानमंत्री ने कही है और उनकी स्पीच में जो बातें कही गई हैं उनसे साफ स्पष्ट हो। जी प्रभुदयाल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की ओर से जो अन्य प्रस्ताव रखे उस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन से इतर जो मुलाकातें हुई वो बेहद अहम हैं। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात प्रधानमंत्री की हुई है। क्या आप देखते हैं कि प्रस्तावों से इतर अगर इस तरह ये मुलाकात हम देखें तो आप दोनों देशों के बीच के संबंधों को पिछले कुछ समय से बारीकी से देख रहे होंगे, आप इस मुलाकात को लेकर कितने आशान्वित, क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, ये बायलैटरल मीटिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जहां तक ये बांग्लादेश के साथ जो प्राइम मिनिस्टर ने बायलैटरल मीटिंग की बांग्लादेश के इंटरिम हेड जो मोहम्मद यूनुस उनके साथ, इसका महत्व तो बहुत सेल्फ एविडेंट है। देखिए, बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, हर तरह से कोऑपरेशन रहा है, लेकिन जब से वहां से शेख हसीना को उन्होंने हटाया, उनका आउस्टर हुआ, वायलेंट रेवोल्यूशन एक्सप्रेस हुआ, और जो नई सरकार आई वो भारत के प्रति अच्छा रुख नहीं रखती है। पहली बात तो हमें बहुत इस बारे में चिंता है कि माइनॉरिटीज का किस तरह से वहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है, माइनॉरिटीज के राइट्स जो हैं वो कुचले जा रहे हैं। और सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया में बहुत से देश हैं जो इस विषय में चिंतित हैं। तो हम चाहते हैं कि जो हिंदू माइनॉरिटी हैं, क्रिश्चियन माइनॉरिटी हैं, बुद्धिस्ट माइनॉरिटी है, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनके हक जो है महफूज रहें, और भारत इस बात पे बहुत अहमियत देता है। तो मेरे विचार में ये जो मोहम्मद यूनुस के साथ मीटिंग प्राइम मिनिस्टर ने की, ये इस संदर्भ में भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारी चिंताएं जो हैं बांग्लादेश के आंतरिक स्थिति के बारे में वो बांग्लादेश समझे। दूसरी बात यह है कि देखिए, चीन से बांग्लादेश जिस तरह से नज़दीक होता जा रहा है वो भी एक बड़ा चिंता का विषय है। चीन जो है हर तरह से हस्तक्षेप करता है साउथ एशिया में और कोशिश करता है कि वो इस रीजन पे अपना कंट्रोल करे, और भारत का जो रोल है
साउथ एशिया में वो कम हो। हमारे लिए चीन का रोल बड़ा नुकसानदेह, और बांग्लादेश के जिस तरह से अब चीन के साथ रिश्ते बढ़ रहे हैं, उनकी जो इंटरिम हेड ये जो है मोहम्मद यूनुस साहब अभी चाइना गए और उन्होंने ऐसी डेंजरस बात कही वो जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बारे में कि वो बिल्कुल लैंडलॉक्ड हैं, एक तरह से चीन को इशारा करते हुए कि वो बांग्लादेश के साथ मिलके इन जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को एक तरह से अपने कंट्रोल में कर सकता है। एक तरह से बात जो उन्होंने कही वो ये बड़ी खतरनाक बात है, और नहीं तो उनको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में क्या बात करने की जरूरत थी। ये बहुत एक नेगेटिव बात उन्होंने की। तो हमें कई बातों पे चिंता है, और इन चिंताओं का अगर सुझाव किया जा सकता है, इनको किसी तरह से इनसे निपटा जा सकता है, तो बांग्लादेश के साथ बात करना बहुत जरूरी होता है। और इसी वजह से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मोहम्मद यूनुस के साथ बातचीत की है। तो ये ओवरऑल सिचुएशन जो बांग्लादेश के साथ हमारी रिलेशनशिप की है, और जो बांग्लादेश का नेगेटिव रोल पूरे रीजन में जिस तरह से चल रहा है, वो चिंता का विषय है, और ये इस तरह की बायलैटरल मीटिंग की बड़ी अहमियत है। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बायलैटरल मीटिंग तो थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर के साथ की, वो एक बड़ी पॉजिटिव मीटिंग। देखिए, उसमें थाईलैंड के साथ हमारा जो रिलेशंस हैं वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, और स्कोप फॉर कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा है कई सेक्टर्स में, इंडस्ट्री, ट्रेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज, डिफेंस सेक्टर, तमाम ऐसे एरियाज हैं जिसमें दोनों देश साथ मिलके काम कर सकते हैं, टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। भारत से इतने टूरिस्ट जाते हैं, और भारत में ऐसे बहुत से टूरिस्ट साइट्स हैं जिनसे थाईलैंड के टूरिस्ट अट्रैक्ट हो सकते हैं। बुद्धिस्ट साइट्स, हिंदू साइट्स, और बहुत से हिस्टोरिकल साइट जैसे ताजमहल है, कुतुब मीनार, ये थाई टूरिस्ट जो है इसमें आ सकते हैं। तो टूरिज्म में बायलैटरल बहुत डेवलपमेंट हो सकता है। तो जो ये मीटिंग थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर के साथ हुई, ये एक बहुत अच्छी, बहुत अहम मीटिंग है, क्योंकि थाईलैंड एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है साउथ ईस्ट एशियन रीजन का, और हम चाहते हैं कि हमारे रीजन की कनेक्टिविटी बने साउथ ईस्ट एशिया के साथ, और उसमें थाईलैंड एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। अब थोड़े बाधाएं आ गई हैं, जो इंटरनल सिचुएशन है म्यांमार, उसकी वजह से, लेकिन हमें तो काफी फार साइटेड पॉलिसी रखनी होती है, और इस फार साइटेड पॉलिसी के तहत थाईलैंड इंडिया कोऑपरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जी, प्रभुदयाल जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। हम इंतजार भी कर रहे हैं कि बैंकॉक से विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है बिम्स्टेक के पूरे सम्मेलन और प्रधानमंत्री के 2 दिन के बैंकॉक दौरे को लेकर, उसका इंतजार है। साथ ही साथ इस बीच जो कुछ द्विपक्षीय मुलाकातें हुई, बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य कार्यवाहक मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। तो इन तमाम विषयों पर बातचीत जारी रखेंगे। प्रभुदयाल जी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और आइए बढ़ते हैं आगे खबरों की तरफ। अन्य खबरों की तरफ रुख डालते हैं। संसद से वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक महत्वपूर्ण क्षण बताया है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक का संसद के दोनों सदनों से पारित होना सामाजिक आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास के लिए हमारे सामूहिक प्रयासों में एक महत्वपूर्ण क्षण है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इससे खास तौर पर उन लोगों को मदद मिलेगी जो लंबे समय से हाशिए पर रहे हैं और जिनकी आवाज़ अनसुनी रही, जिन्हें अवसरों से वंचित रहना पड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दशकों से वक्फ व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव था। इससे खास तौर पर मुसलमान महिलाओं, गरीब मुसलमानों, पसमानदा मुसलमानों के हितों को नुकसान पहुंचता था।
उन्होंने कहा कि संसद द्वारा पारित कानून पारदर्शिता को बढ़ाएंगे और लोगों के अधिकारों की रक्षा भी करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि हम एक ऐसे युग में प्रवेश करेंगे जो आज के समय के अनुरूप होने के साथ ही सामाजिक न्याय को लेकर प्रतिबद्ध होगा। वहीं उन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक की गरिमा को प्राथमिकता मिले, इसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं। ये मार्ग ज्यादा सशक्त, समावेशी और संवेदनशील भारत के निर्माण में काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। संसद से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को स्वीकृति मिलने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है जब संसद ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को स्वीकृति देकर वर्षों से चले आ रहे अन्याय और भ्रष्टाचार के युग का अंत किया है और न्याय व समानता के युग की शुरुआत की है। इस विधेयक के माध्यम से वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियां अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और न्याय संगत होने वाली हैं। इससे निश्चित ही मुसलमान समुदाय के गरीबों, महिलाओं और बच्चों को लाभ मिलेगा। करोड़ों लोगों को न्याय देने वाले इस महत्वपूर्ण बिल के लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी को बधाई देता हूं। गृहमंत्री ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा कि साथ ही इसका समर्थन करने वाले सभी दलों व सांसदों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संसद के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि ये एक नए अध्याय की शुरुआत है। इस विधेयक से करोड़ों मुसलमानों को फायदा होगा। लोगों ने देखा किसी की नागरिकता नहीं गई, उसी तरह लोग देखेंगे गरीब मुसलमानों के जिंदगी में, महिलाओं के जिंदगी में, विधवाओं के जिंदगी में कैसे मुस्लिम समाज के लिए ये उपयोगी होता है। जो आज तक लूट रहे थे उन्हीं को तकलीफ जाती। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी का नाम लिए बिना कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक पर उनकी टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण और संसदीय मर्यादा के अनुरूप नहीं है। राज्यसभा सदस्य सोनिया गांधी ने आरोप लगाया था कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को जबरन पारित कराया गया और ये विधेयक संविधान पर सरेआम हमला है। बजट सत्र के आखिरी दिन संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने द्वारा सोनिया गांधी की टिप्पणी का उल्लेख किए जाने के बाद ओम बिरला ने यह भी कहा कि एक वरिष्ठ सदस्य द्वारा लोकसभा की कार्रवाई पर प्रश्न उठाना उचित नहीं है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ सदस्य जो कि सदन की सदस्य रह चुकी है, वर्तमान दूसरे सदन की सदस्य है, द्वारा सदन के परिसर में ऐसा वक्तव्य दिया गया है कि सदन द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक जबरदस्ती पारित किया गया। वक्फ संशोधन विधेयक पर सदन द्वारा 13 घंटे 53 मिनट चर्चा की गई, जिसमें सभी दलों के 61 सदस्यों ने विचार रखा है। इस विधेयक पर 3 बार मत विभाजन हुआ, अतः इस विधेयक सदन के नियमों के अनुसार पारित किया गया। सदन की कार्रवाई पर एक वरिष्ठ सदस्य द्वारा प्रश्न उठाना उचित नहीं है और ये संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा के अनुरूप भी नहीं है। और सीधे लिए चलते हैं आपको केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। The Parliament business and functioning are given proper support and also to follow the rules, regulation, procedures, conventions in running the House. From the government side, we would like to extend our gratitude to both Honorable Chairman of Rajya Sabha and Honorable Speaker of Lok Sabha and all political leaders, right from Honorable Prime Minister to the leaders of all political parties for the smooth functioning of the budget session. This budget session has been very productive. It has already been announced by both Honorable Chairman and the Speaker, so I'm not going to repeat. The productivity of this session has been extremely very high. One important milestone we have achieved is yesterday in Rajya Sabha, we created the new record. The earlier record was in 1981 when the Parliament discussed on essential services
Maintenance Act. So when the ESMA bill was discussed and passed and became an act, it took 15 hours and 51 minutes. And yesterday in Rajya Sabha, it broke the record by devoting 17 hours and 2 minutes of discussion. So this is 2 minutes, 17 hours and 2 minutes. So a record, a history has been created. And for any circumstances, this record to be broken seems to be extremely difficult, because to run the House consecutively for 2 days, from 11 a.m. on 3rd to 4:2 a.m. in the morning of the next day, 4th. It's a record which is because of the support contribution of all the honorable members, and not a single disruption during the discussion for the Waqf Amendment Bill. So the time taken for the discussion of Waqf Amendment Bill, both in Lok Sabha and Rajya Sabha, had gone without any adjournment, any disruption, except pleasant exchanges of sarcasm, criticism, and also suggestions. As parliamentary norms go, we accept all kind of criticism as well as clarifications, and sometimes political banters, it happens. So overall, to create such a milestone requires the contributions, the patience, and the deliberations of the honorable members. So for that, I would like to thank all the honorable members of Lok Sabha and Rajya Sabha. About the business, I need not elaborate. Lok Sabha is 13 hours plus. Lok Sabha, as far as I remember, it once sat till 4 a.m. past. And Raghuvansh Babu was that was not a bill. That is not That bill. was the Railway. budget. There's the one discussion of the There railway is a budget. railway discussion. So, in Lok Sabha, we had discussed on the demands for grants related to the Ministry of Railways, Jal Shakti, Agriculture and Farmers' Welfare. And in Rajya Sabha, we discussed the working of the Ministries of Education, Railways, Health and Family Welfare, and Ministry of Home Affairs. So we had a very productive session, and all the floor leaders had extended pleasantries with the Honorable Chairman and Speaker at the end of the day. And from this press briefing, I would like to also thank both the Honorable Chairman and the Speaker, and also all the political leaders, especially the floor leaders and the members. If you have any clarification to seek, you can ask. I'm Shobna from The Hindu. I just wanted to ask, sir, what was the urgency to discuss the resolution on Manipur in the wee hours in both houses? Couldn't it wait for few hours and you could have taken it up today morning? केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बजट सत्र के समापन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से दोनों ही सदनों में वक्फ संशोधन बिल को पारित करने में एक नया रिकॉर्ड बना है। उन्होंने बताया कि किस तरह से 17 घंटे से ज्यादा समय तक राज्यसभा की कार्रवाई कल देर रात तक चली है। वहीं एक दिन पहले यानी कि 2 और 3 तारीख को लोकसभा और राज्यसभा में जिस तरह से लंबी कार्रवाई चली, बिना किसी स्थगन के वक्फ संशोधन बिल पर एक लंबी चर्चा हुई और वक्फ संशोधन बिल दोनों ही सदनों से पास किया गया है। उसको लेकर सभी सांसदों का भी आभार व्यक्त किया। साथ ही साथ उत्पादकता को लेकर सदन की उन्होंने खुशी जाहिर की है। तो इन तमाम चीज़ों के साथ केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। आइए एक बार फिर लौटते हैं अन्य खबरों पर। वक्फ बिल के खिलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि ये बिल असंवैधानिक है और इसके खिलाफ हम उच्चतम न्यायालय जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने वक्फ संशोधन बिल 2025 को लेकर कहा कि यह बिल पूरी तरह से संवैधानिक है।
उन्होंने ये भी कहा कि यदि कांग्रेस इस बिल को कोर्ट में चुनौती देना चाहती है तो वो ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है। लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल पास हो चुका है, लेकिन कांग्रेस लगातार उसको लेकर जो बयान दे रही है उस पर कांग्रेस का कहना है कि वो इसको चुनौती देते हुए कोर्ट जाएगी। ये जो बार बार कांग्रेस के कुछ कानूनविद द्वारा कहा जा रहा है कि ये संवैधानिक है, हम कोर्ट जाएंगे, तो जाएं कोर्ट, कोई रोक तो है नहीं। 3 तलाक में गए थे ना, राम जन्मभूमि को रोकने की कोशिश की थी ना, धारा 370 को कहा था ना कि कैसे संवैधानिक है, सब निर्णय सामने में है। ये जो वक्फ संशोधन बिल है ये बिल्कुल संविधान सम्मत है। संविधान के मौलिक अधिकार की धारा 15 में इस बात का प्रावधान है कि महिलाओं के विकास के लिए, पिछड़े समाज के विकास के लिए सरकार कानून बना सकती है। वक्फ बिल के खिलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि यह बिल असंवैधानिक और इसके खिलाफ हम उच्चतम न्यायालय जाएंगे। हम जनता की अदालत में भी जाएंगे और न्यायालय में भी जाएंगे। आर्टिकल 25, 26, आर्टिकल 15 तमाम उल्लंघन हुए हैं, इसके खिलाफ हम अदालत में भी जाएंगे। और लोकसभा में पारित होने के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 राज्यसभा से भी पारित हो गया है। विधेयक के पास होने पर अलीगढ़ में मुस्लिम समुदाय ने जश्न मनाया। मुस्लिम समुदाय ने कैंडल जलाकर लड्डू बांटे और आतिशबाजी की। मुसलमान संगठनों ने कहा कि देश के करोड़ों शोषित मुसलमानों के लिए इस बिल के जरिए राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से आगे बढ़ने के दरवाजे खुल गए हैं। ऐतिहासिक काम हुआ है। इस बिल के जरिए देश के करोड़ों मुसलमानों को जो पसमानदा तबके से ताल्लुक रखते हैं, आगे बढ़ने के दरवाजे इस बिल के जरिए खुले हैं। पसमानदा और गरीब मुसलमानों में खुशी की लहर है और हमने भी आज मिष्ठान वितरित किया है, आतिशबाजी की है। और जिस तरीके से मुसलमानों के विकास के रास्ते में एक अंधियारा था, वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद एक नई रोशनी की उम्मीद जगी है। और पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर भाजपा ने ममता सरकार पर हमला बोला है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को धोखाधड़ी बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजों की बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार, दोनों ने अपना जजमेंट सुनाया। मैं जजमेंट का एक अंश पढ़ के सुनाता। हमने इस केस के तथ्य को जांचा है, पूरे केस के तथ्य को जांचा है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है। और पूरा का पूरा मामला जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो मैनिपुलेटिव है, उसको मैनिपुलेट किया गया है और फ्रॉड है, धोखाधड़ी है, धोखा दिया गया है। वेस्ट बंगाल की सरकार और वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की क्रेडिबिलिटी और उनकी लेजिटिमेसी की धज्जियां उड़ गई हैं, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। संबित पात्रा ने कहा कि बंगाल में दीदी की दादागिरी पूरा विश्व देख रहा है, वहीं बंगाल में भ्रष्टाचार चरम पर है। बंगाल की परिस्थिति, बंगाल का भ्रष्टाचार, बंगाल में दीदी की दादागिरी, यह आज पूरे भारतवर्ष में ही नहीं विश्व में लोग देख रहे हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ममता बनर्जी एवं उनकी सरकार ने बंगाल में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को अनलीश किया है, भ्रष्टाचार को खुलेआम छोड़ रखा है, आज उसका गाज लाखों लोगों के ऊपर पड़ा है। पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को शॉपिंग मॉल बना दिया है। मॉल बना दिया है ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को। जो खरीदना है, आपको टीचर खरीदना है, नौकरी खरीदना है, सैंड लेके नदी से बेचना है, जो चाहे आप कर सकते हैं, सिर्फ पैसा देना है। शॉपिंग मॉल बना के रख दिया है ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को। और पश्चिम बंगाल में जिस तरह से शिक्षक घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सख्त बातें कही हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी हमलावर है ममता बनर्जी सरकार पर। इस पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रसेनजीत बख्शी कोलकाता से। प्रसेनजीत, भारतीय जनता पार्टी का
भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये ममता सरकार ने बंगाल को इस समय पूरे तरीके से शॉपिंग मॉल बना दिया है। और रितु देखिए, अभी जो हो रहा है ना, अभी एक अजीब किस्म का तृणमूल कांग्रेस की तरफ से लोगों का जो दुख है, दर्द है, रोना है, इसे बेचने की काम किया जा रहा है। अगर इसको शॉपिंग मॉल कहा जाए कि जहां पे सब कुछ बेचा जाता है, तो अभी जो 26,000, इसमें चाहे कौन योग्य या कौन अयोग्य, ये अलग बात है, लेकिन अब ये 26,000 जिन लोगों का नौकरी गए, उनका जो रोना है, उनका जो हाहाकार है, ये बेचने के लिए तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी अभी बंगाल की शॉपिंग मॉल में उतर गए हैं। प्रसन्नजीत, क्या ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, बड़े आरोप लगाती रही है ममता सरकार पर, लगातार तमाम भ्रष्टाचार को उजागर करती रही है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट अगर किसी एक पूरे शिक्षक भर्ती घोटाले को फ्रॉड कहता है, मैनिपुलेटेड कहता है, यानी कि सरकार की मिलीभगत की तरफ इशारा बहुत साफ है, तो ये एक बड़ा, एक तरह से बड़ी टिप्पणी है, बड़ा खुलासा है ममता बनर्जी सरकार के भीतर जो हो रहा है उसको लेकर। देखिए रितु, ममता बनर्जी एक ऐसी लीडर है, वो किसी को भी नकार सकती है। जब इसी राय को हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया था, तो ममता बनर्जी चिल्ला चिल्ला कर कही थी कि मैं ये मानती नहीं हूं, मानती नहीं हूं, मानती नहीं हूं। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, उनका सुप्रीम कोर्ट का डिवीजन बेंच ने बोल दिया, अभी उस सामने कोई रास्ता नहीं है। अब मैं जो कह रहा था, इस शॉपिंग मॉल में उन्होंने इन लोगों का हाहाकार बेचने के लिए उतर गई है, और लोगों को ये झूठ, ये भ्रम फैलाने, लोगों के बीच में ये भ्रम फैलाने की कोशिश में है कि अदालत ने तो राय दे दिया है, लेकिन शायद इस राय में मैं कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन इस राय में थोड़ा, ये तो राय में अदालत जो जुडिशियरी है, वो तो एक भी जो अपराधी नहीं है उनको तो वो सजा नहीं दे सकते। तो इसमें तो कई सारे योग्य लोग थे, उनको भी सजा हो गया है। कोर्ट ने बताया था, पिछले 3-4 सालों से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक बार बार बताया गया है, आप योग्य अयोग्यों का जो लिस्ट है वो हमें दे दीजिए, हम जो योग्य है उनको निकाल देंगे और बाकी लोगों का नौकरी रख देंगे। बार बार स्कूल सर्विस कमीशन और प्रदेश सरकार की तरफ से वकीलों ने झूठ बोला है अदालत के सामने, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, कि हम देते हैं, अगले सुनवाई में देते हैं, अगले सुनवाई में देते हैं, और ये देना नहीं चाहते हैं। क्योंकि रितु, ये जाहिर सा बात है, अगर एक भी ऐसा इंसान को मिल जाए जो पैसा देकर नौकरी खरीदे है, तो पता चल जाएगा कि किसको पैसा दिया था, तो पता चल जाएगा कि उसको वो पैसा देने के बाद उसका नौकरी किस तरह से मैनिपुलेट और फ्रॉड किया गया था। तो ममता बनर्जी चाहती नहीं थी कि जो फ्रॉड और जो ओरिजिनल है, इन दोनों का लिस्ट अदालत के सामने आ जाए, क्योंकि पूरी उसका तहकीकात जड़ तक चला जाएगा और पैसा का जो ट्रेल है वो निकल आएगा। तृणमूल कांग्रेस की कौन कौन नेता इस फ्रॉड में लगे हुए हैं वो निकल आएगा। किस तरह से कैबिनेट ने सुपर न्यूमररी, मतलब एक्स्ट्रा पोस्ट क्रिएट करके ये जो फ्रॉड है उसको एकोमोडेट करने की कोशिश किया गया था, तो पूरे कैबिनेट वो जो तहकीकात की दायरे में आ जाएगा। ये ममता बनर्जी चाहती नहीं थी। अब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाने के बाद लोगों का हाहाकार और रोना को बेचने के लिए ममता बनर्जी बंगाल की शॉपिंग मॉल को खोल दिया है। रितु जी, प्रसन्नजीत, भारतीय जनता पार्टी का यह भी कहना है कि ममता बनर्जी अपने बचाव में अब सड़कों पर उतरेंगी। इस तरह का भी जो एक तरह से आरोप या फिर यूं कहें कि एक हमला ममता सरकार पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर हम विगत कुछ ऐसे घटनाओं को देखें तो उसमें हमने देखा, अर्जीकर मामला भी जब हुआ था और जब दबाव ज्यादा हुआ तो ममता बनर्जी खुद सड़कों पर उतर आई थी प्रदर्शनकारियों की ही तरह। तो ये जो एक तरीका ममता बनर्जी का रहा है, जब उन पर आरोप ज्यादा होते हैं, घिरती है उनकी सरकार, तो इस तरह से वो जनता के बीच में पहुंचती हैं। नहीं, जनता के बीच में पहुंचती है, ये अगर रितु आपका स्टेटमेंट को मैं कुछ दूसरी तरीका से मैं बताने की कोशिश करूंगा कि जनता जितना उनसे दूर हटता जा रहा है, उतना ही ममता बनर्जी ने इस तरह की, अभी उन्होंने बताया, ये बोल रही थी कल कि ये जो दवाई का दाम बढ़ाया गया है,
एक्चुअली ये दवाई का दाम जो बढ़ना है ये मार्च महीने से, ये फरवरी महीने से सबको पता था। ऐसा नहीं है कि 1 अप्रैल से बढ़ना है, ये सबको पता है। अब उन्होंने इसके बारे में कुछ रैली निकालने की बात की है। अब वक़्फ़ को लेके उनकी तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने रैली निकालने की बात कह रहे हैं। तो किसी ना किसी तरह से ये जो हजारों लोग, हजारों टीचर, नॉन टीचिंग स्टाफ, इनको पता नहीं है कि आगे इनका परिवार कैसे चलने वाला है, इनको पता नहीं है कि आगे इनका बच्चों का शिक्षा कैसे चलने वाला है। और ऊपर से बंगाल में जो गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम है, जहां से अब 26,000 टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ अलग हो गए, उसके बाद ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, इसके बारे में जब किसी को कुछ पता नहीं है, तब ममता बनर्जी कुछ अनब शनब बात कहकर वो हम जनता के बीच जाने की कोशिश, मतलब जनता को बरगलाने की काम और जनता के बीच भ्रम फैलाने की जो काम है वो करने की कोशिश में है। ऋतु, प्रसन्नजीत, अंत में एक एक कर कई ऐसे मामले हो रहे हैं जिसमें ममता बनर्जी जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता को खोती दिखाई दे रही हैं। अब शिक्षक भर्ती घोटाले में जब इतने बड़ी संख्या में शिक्षकों पर एक तरह से एक तलवार चलने जा रही है, ऐसे में जनता का भी एक रोष ममता बनर्जी के पूरे कार्यशैली पर है, उनकी सरकार की कार्यशैली पे, तमाम घोटालों पर है। क्या एक बड़ा जवाब जनता अब ममता बनर्जी को दे सकती है? देखिए, सामने चुनाव है, लेकिन जिस भाषा बस, ट्राम या चाय की दुकान में इस्तेमाल किया जा रहा है वो मैं ब्रॉडकास्ट में बोल नहीं सकता। वो भाषा आप समझ लीजिए कि बंगाल के लोगों ने ममता बनर्जी के बारे में क्या कह रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात है, ये तो सिर्फ अभी सेकेंडरी लेवल का 26,000 है, इसके बाद प्राइमरी लेवल का 32,000 है, जो सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच की स्टे ऑर्डर के कारण अभी बचा हुआ है। वहां पे भी सिमिलर आरोप है और उसका जो ट्रायल का प्रोसीड्योर हम देख रहे हैं उसमें भी भरोसा कर नहीं पा रहा है हम लोग कि ये 32,000 नौकरी ममता बनर्जी की सरकार बचा पाएगी। तो मतलब अब लोगों का ये कहना है कि जो बच्चे को हम पढ़ा रहे थे सरकारी स्कूल में, हम लोगों के लिए 2,000 या 2,500 या 4,000 या 5,000 रुपया देकर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का हिम्मत नहीं है। अब सारे के सारे स्कूल बंद होते जाएगा क्योंकि टीचर नहीं है, नॉन टीचिंग स्टाफ नहीं है, पूरा सरकारी एजुकेशन सिस्टम ठप पड़ गया। बिल्कुल प्रसन्नजीत, समझ में आ गया। बिल्कुल प्रसन्नजीत, इस पूरे भर्ती घोटाले से पे जो सवाल उठ रहे हैं, जिन भर्तियों को रद्द किए जाने की बात की गई है, निर्देश दिए गए हैं, 4 प्रमुख बातों में सुप्रीम कोर्ट की बहुत साफ है कि जिस तरह से दिव्यांग जो शिक्षक हैं उनके लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं, निर्दोषों के लिए प्रावधान किए गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि पश्चिम बंगाल के पूरे एजुकेशन सिस्टम को ध्वस्त करता ये पूरा घोटाला सामने दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसन्नजीत हमसे जुड़ने के लिए। और आइए बात करेंगे भारत कुमार यानी मनोज कुमार की, जो आज हमें छोड़कर चले गए। हिंदी सिनेमा को अपनी फिल्मों के माध्यम से देशभक्ति की भावना को बढ़ाने भारत कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। आज सुबह करीब 3:30 बजे कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। मनोज कुमार पिछले कुछ हफ्तों से अस्पताल में भर्ती थे। मनोज कुमार का जाना भारतीय सिनेमा के लिए बहुत बड़ी क्षति है, एक युग का अंत है। मनोज कुमार के निधन पर उनके बेटे कुणाल गोस्वामी ने कहा कि मनोज कुमार का अंतिम संस्कार कल होगा। 1947 में भारत के बंटवारे के बाद मनोज कुमार पाकिस्तान की तरफ से भारत आए थे और जिस घायल अवस्था में वो थे, उनका कहना है कि जिस ट्रेन से वो भारत पहुंचे थे उसमें सिर्फ लाशें ही लाशें थीं और उनको भी मरा समझ के छोड़ दिया गया था। तो कई ऐसे अनुभव मनोज कुमार के रहे हैं बंटवारे के दिनों से लेकर एक लंबा संघर्ष, और बॉलीवुड में एक बड़ा स्थान अर्जित किया मनोज कुमार ने अपने जीवन में। बात करें पुरस्कार और टाइम सम्मान से, लेकिन बड़ी शिद्दत से उन्होंने हर चीज़ का मुकाबला किया है और भगवान की कृपा है, शिरडी बाबा की दया है कि वो चैन से आराम से इस दुनिया से गए हैं। कल सुबह उनका क्रेमेशन होगा। बात करें पुरस्कार और सम्मान की तो 1992 में पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार
मनोज कुमार को दिया गया 2016 में दादा साहब फाल्के सिने जगत में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और कई फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया मनोज कुमार जी को। भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने अभिनेता और फिल्म निर्देशक मनोज कुमार के निधन पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि देशभक्ति पर बनाई हुई उनकी फिल्में हमेशा यादगार रहेंगी। जितने भी बनाए उन्होंने फिल्म वो सब देखे और पेट्रियोटिक, सो देश के साथ कनेक्टेड ही रहता है उनका ही वॉज सो फॉन्ड ऑफ दिस एंड ही ऑल्सो जॉइंड बीजेपी फॉर सम टाइम बट बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ रीजन ही कुड नॉट कंटिन्यू बट ही वॉज वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ दिस पार्टी एंड देश के प्रति और देश के लिए जो भी अच्छा काम करते तो बहुत सराहते थे। तो मैं भी जब यहाँ पार्लियामेंट में आई, यहाँ मथुरा की सांसद बनी, तो मुझे बहुत हमेशा फ़ोन में बात करते थे और पता करते रहते थे कि क्या क्या हो रहा है। एंड तब भी मैं बोलती थी कि आप व्हाई डोंट यू कंटिन्यू योर फिल्म मेकिंग, बनाइए, आपके जैसे फिल्म मेकर्स नहीं हैं आजकल। हाँ करूँगा बोला, बट इट्स वेरी सैड दैट ही इज़ नॉट देयर एनी मोर। उनके साथ इतना ब्यूटिफुल मेमोरीज आर देयर वर्किंग विद हिम इन सच वंडरफुल फिल्म्स, फर्स्ट स्टार्टेड विद सन्यासी, उसमें कितने अच्छे अच्छे गाने थे ना। गाना पिक्चराइज करने में भी ही वॉज एन एक्सपर्ट, उनको मालूम है कैसा प्रेजेंट करना है हीरोइन को, ऐसा एक डायरेक्टर थे वो। पिछले 40-50 सालों में बॉलीवुड में देशभक्ति की अलग जगह रखने में अभिनेता कुमार की बड़ी भूमिका रही है। मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।